Good morning, students. You are welcome to YouTube channel Senior Secondary Pratibha Public School Bandipur. In last class, we discussed the exercise 3.3 where our first question is completed, and in the second question, fourth question is completed, and I am going to start question fifth of second question. Okay. Then fifth is 1 upon x minus 2 plus 2 upon x minus 1 equals to 6 upon x. Then this is a quadratic equation, but it is not in the standard form, because standard form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0, where first term is x square and second term is x and the third term is constant. But this is also a quadratic equation, but it is not in the standard form. So first of all we take the LCM and convert it into the standard form. Okay, then we take the LCM of this equation. Then the LCM is x minus 2 multiply x minus 1. Then x minus 2 divide the LCM, x minus 2 से x minus 2 cancel हो जाएगा. Then क्वोशिएंट इज x minus 1, मीन्स मैं x minus 2 से इस LCM को डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये x minus 1 टाइम्स होगा और x minus 1 न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. Then 1 is multiplied x minus 1 प्लस 2 x minus 1 से LCM को डिवाइड किया, x minus 1 से x minus 1 कैंसिल, देन x minus 2 डिवाइड, x minus 2 टाइम्स डिवाइड एंड x minus 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, x minus 2 इक्वल्स टू 6 अपॉन x. 1 को x minus 1 से किया x minus 1, 2 को x minus 2 से किया 2x minus 4 upon x minus 2 multiply with x minus 1. Then firstly we multiply the x with the x minus 1 and after that minus 2 is multiply with the x minus 1. So x को किया x square minus x minus 2 को minus 2x plus 2, okay, equals to 6 upon x. Then x plus 2x 3x minus 1 and minus 4 sign same है, so these numbers are added in negative sign, with negative sign. Then 3x minus 5 upon x square minus 3x plus 2 equals to 6 upon x. Then we cross multiply, x multiply with 3x minus 5 equals to 6 multiply with x square minus 3x plus 2. Okay, x multiply by 3x minus 5 and 6 multiply with x square minus 3x plus 2. Then 3x square minus 5x equals to 6x square minus 18x plus 6 to the 12. Then we will transpose the 3x square minus 5x in the right hand side, because right hand side में ले जाने में क्या होगा, 6x square में से 3x square subtract होगा. Then we get the positive 3x square. और हम ज्यादातर सोचते हैं कि जो भी फर्स्ट टर्म होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए. Then 6x square minus 18x plus 12 minus 3x square minus 5x का ट्रांसपोज होगा plus 5x equals to 0. Okay, then 6x square minus 3x square, 3x square minus 18x plus 5x minus 13x plus 12 equals to 0. So our equation is converted into the standard form of quadratic equation. और जैसे ये standard form में convert हो जाएगी, change हो जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता ही है, क्योंकि इससे भी पहले हमने काफी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए हैं. फैक्टराइजेशन मेथड में बेसिकली हमें क्या देखना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए. मल्टीप्लाई करने पर we get the number which is obtained by the product of first and third term. Plus 3 को plus 12 से मल्टीप्लाई किया, then we get the 36 after multiplication. मीन्स हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद plus 36 आना चाहिए और मल्टीप्लाई पे नंबर पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए मिडिल टर्म ऐड करने पर आनी चाहिए. एंड आफ्टर एडिंग कितना आना चाहिए ऐड करने के बाद, -13. तो इस तरह आप टू नंबर्स फाइंड कीजिए, या जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म को टू पार्ट्स में स्प्लिट कीजिए या
ब्रेक कीजिए जिससे मुझे उन दोनों नंबर्स को ऐड करूं तो -13 मिल जाए और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो +36 आ जाए। देन 9 एंड 4, यदि आपकी माइंड में नहीं आ रहा है तो आप 36 के प्राइम फैक्टर करके उसमें से पेयर बना सकते हैं, ठीक है। वो इससे पहले लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी मल्टीप्लाई करने पे नंबर आता है हम उसके प्राइम फैक्टर करके देखते हैं, प्राइम फैक्टर में से हम प्राइम नंबर्स के पेयर बना के देखते हैं कि उनका एडिशन 13 आ जाए। तो कितना होगा 9 एंड 4, 9 में 4 ऐड किया 13 और 9 4 जा 36, बट मुझे एडिशन नेगेटिव चाहिए, इसलिए दोनों ही नंबर कैसे होंगे माइनस के, तो -9x एंड -4x, ओके। -9x -4x plus 12 equals to 0, ओके। कॉमन 3x x minus 3, वहां भी ब्रैकेट x minus 3 आना चाहिए, x बचाने के लिए x के साथ जो भी दिख रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। देन वी टेक द कॉमन -4, x minus 3 equals to 0, then x minus 3, 3x minus 4 equals to 0, okay, then x minus 3 and 3x minus 4 equals to 0, then the multiplication of both factor equals to 0 when then first factor 0, second factor 0 or both factors are to be 0, so x minus 3 equals to 0 and 3x minus 4 equals to 0. X equals to 3 and 3x equals to 4, then x equals to 4 upon 3, ओके। तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन गिवन था वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, सो we take the LCM and change into the standard form, and after changing in the standard form we solve this quadratic equation by the factorization method or splitting the middle term। तो इसमें मिडिल टर्म को इस तरह टू पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में मिडिल टर्म मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए, सो नॉट इट। Question, sixth question is very simple, 100x square minus 20x plus 1. In this question is already changed into the standard form, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल मींस 100 आना चाहिए और एडिशन में -20, तो -10 और -10 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो देखिए अब इसमें से मैं आपको कौन से क्वेश्चन बता दूं, 6th क्वेश्चन आपको करना है, 7th क्वेश्चन अभी मैं आपको समझा देता हूं, 8th क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई करने पर +7 आना चाहिए और ऐड करने पर 8 आना चाहिए। 7 एंड 1, क्योंकि 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 7 आ जाएगा और 7 में 1 को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन नंबर 9 कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 अपने इस स्टेप से स्टार्ट हो रहा है जिसमें हमें दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद को करना है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, इन तीन क्वेश्चन को मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसके बाद अपनी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगी और एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे, ओके। The question number 7th part of question 2, okay, then 3x square minus 2 root 6x plus 2 equals to 0, okay। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म +3 लास्ट टर्म +2, +3 को +2 से मल्टीप्लाई किया देन वी गेट द +6 एंड मल्टीप्लाई करने पर नंबर पॉजिटिव आ रहा है देन मिडिल टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो हमें मिडिल टर्म ऐड करने पर आनी चाहिए, तो ऐड करने पर कितना आना चाहिए -2 रूट 6। तो अब इसके फैक्टर कीजिए, इस तरह दो नंबर सेलेक्ट कीजिए कि दोनों को ऐड करूं तो 2 रूट 6 आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाए। तो यहाँ एक बात यहाँ से देखिएगा
कि नंबर मुझे रूट 6 में ही लेके आना है, तो जो भी नंबर अज्यूम होंगे ना वो रूट 6 की फॉर्म में ही होंगे, मींस जो भी ये स्प्लिट होंगे, जो भी टू नंबर्स सेलेक्ट या डिसाइड होंगे वो रूट 6 की ही फॉर्म में होंगे। तो देखिए मैं फर्स्ट नंबर रूट 6 ले लूं और सेकंड नंबर भी रूट 6 ले लूं। रूट 6 को रूट 6 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 रूट 6, और रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6। रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या है कि मैं रूट 6 का स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, रूट 6 का स्क्वायर रूट 36 और 36 का रूट 6। ओके, देन द नंबर रूट 6 एंड नेगेटिव 2 रूट 6 चाहिए ऐड करने के लिए दोनों ही नंबर नेगेटिव के होंगे, देन रूट 6x एंड माइनस रूट 6x। क्लियर? एक बार फिर सुनिए, ऐसे दो नंबर बनाने हैं, सेलेक्ट करने हैं जिनको ऐड किया जाए तो 2 रूट 6 आ जाए, नेगेटिव और मल्टीप्लाई किया जाए तो 6, लेकिन नंबर में रूट 6 आना चाहिए, इसलिए दोनों ही नंबर रूट 6 की फॉर्म में अज्यूम होंगे, तो रूट 6 एंड रूट 6 दोनों को ऐड करूंगा 2 रूट 6, बट मुझे माइनस का चाहिए तो दोनों ही माइनस के होंगे, और माइनस रूट 6 को माइनस रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ओके, देन 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x में से क्या कॉमन आ रहा, तो इसमें से आ रहा रूट 3x। तो इस बात को भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, या इस स्टेप को मैं इसी में सॉल्व करके बताऊं, क्योंकि 3 कैसे आ सकता है। जैसे आप देखिए 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है मैं आपको साइड में रफ वर्क में सॉल्व करके बता देता हूं। 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x, 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। 3 को कैसे लिखा जा सकता है, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, बिकॉज रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा x स्क्वायर। रूट 6 को कैसे लिखा जा सकता है, रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6 आएगा, रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो 3 आएगा x। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक तो रूट 3 कॉमन आ रहा है और एक अपना x कॉमन आ रहा है, देन वी टेक द कॉमन रूट 3x, देन द रिमेनिंग टर्म रूट 3x माइनस रूट 2। ओके, क्लियर? 3 में रूट 3 कितने टाइम्स होता है, 2 टाइम्स। रूट 6 को रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3, दोनों में से रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, देन द रिमेनिंग टर्म इज रूट 3x माइनस रूट 2। रूट 3x कॉमन, देन रूट 3x माइनस 2। ओके, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, तो इसी तरह हम करते हैं, रूट 6x प्लस 2। ओके, रूट 6 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 6 आ जाएगा। 2 कैसे आएगा, 3 कैसे आ रहा था जब हम रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 2 कैसे आएगा जब मैं रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा और रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पे रूट 6 आएगा। तो देखिए अब आपके लिए कॉमन देखना बिल्कुल सिंपल है, बताइए क्या कॉमन आ रहा है, रूट 2। रूट 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, और ये टर्म नेगेटिव है इसलिए मुझे रूट 2 कैसा लेना होगा, माइनस का। तो मैं रूट 2 कॉमन लूंगा तो रूट 3x, और ये 2 में से रूट 2 ले लिया तो रूट 2, बट माइनस का रूट 2 कॉमन लिया इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, क्लियर? रूट 6x प्लस 2, रूट 6 में रूट 2 एंड रूट 3 दोनों है और 2 में रूट 2 2 टाइम्स है, तो दोनों में से माइनस रूट 2 कॉमन आ जाएगा, देन द रिमेनिंग टर्म इज रूट 3x माइनस 2, then root 3x minus 2 is common and the remaining term root 3x minus root 2। ओके, यहाँ पे रूट 2 आ जाएगा, तो ये रूट 6 में रूट 2 एंड रूट 3 है, तो रूट 3 कॉमन ले लिया तो रूट 2 बचेगा। ठीक है, तो रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0, देन रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0, root 3x equals to root 2, then x equals to root 2 upon root 3। दोनों रूट को एक साथ अप्लाई किया जा सकता है, root 2 upon 3। Similarly, root 3x minus root 2 equals to 0, root 3x equals to root 2, x equals to root 2 upon root 3।
then x equals to root 2 upon 3. Okay, note it. Number second, the tenth part क्या है, 4x square minus 4a square x plus a to the power 4 minus b to the power 4 equals to 0. This is the terms of x square, this is the terms of x, and this is the constant term ax square plus bx plus c. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन यदि पॉजिटिव आ रहा है देन द मिडिल टर्म इज ऑब्टेन बाय द एडिशन ऑफ टू नंबर्स और टू एक्सप्रेशंस। मींस यदि मल्टीप्लाई करने पर नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो मिडिल टर्म कैसे मिलती है, किन्हीं भी दो नंबर या एक्सप्रेशंस को ऐड करने पर। और मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव कब आता है, जब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो, तो फिर दोनों नंबर्स को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। ओके, तो उससे पहले मैं थोड़े से इसके फैक्टर बना लेता हूं। अब इसको आप साइड में थोड़ा देखिए, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। यदि मैं आपसे पूछूं a की पावर 4 किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन वी गेट a टू द पावर 4। एंड b स्क्वायर किसका स्क्वायर है, b की पावर 4 किसका स्क्वायर है, b स्क्वायर। अब देखिए इसमें आइडेंटिटी क्या अप्लाई हो रही है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस y x माइनस y। a स्क्वायर बिहेव एज x, क्योंकि देखिए स्क्वायर की जगह स्क्वायर है तो जो भी ब्रैकेट में है a स्क्वायर वो किसकी जैसे बिहेव कर रहा है, एज x। स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, सो b स्क्वायर बिहेव एज y। सो x प्लस y x माइनस y, जहां भी x आ रहा है मुझे a स्क्वायर पुट करना है, और जहां भी y आ रहा है b स्क्वायर, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के पहले हम एक बार फैक्टर कर लेते हैं। a की पावर 4 इज द स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर एंड b टू द पावर 4 इज द स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर। देन वी अप्लाई द आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, देन x प्लस y x माइनस y, then the value of x is a square and value of y is b square, then a square plus b square a square minus b square। ओके, क्लियर। अब देखिए अपने उसी रूल पे चलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड का अदर नेम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड पे चलना है, तो उसके लिए क्या देखते हैं हम, मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या है, x स्क्वायर को नहीं लेना है, वो अपने आप आ जाएगा, बाद में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 4, लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। फर्स्ट टर्म 4 है, लास्ट टर्म, इसके ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखना है कि इसके आपको पहले फैक्टर कर लेने हैं। तो हमने लास्ट टर्म सीखी वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मींस मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। फर्स्ट टर्म कितनी है 4 एंड द लास्ट टर्म इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, और ये नंबर कैसा आ रहा पॉजिटिव, इसलिए मिडिल टर्म ऐड करने पर आनी चाहिए। तो ऐड करने पर कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म की तो माइनस 4a स्क्वायर। तो अब देखिए इस तरह के टू फैक्टर करने हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाए, ऐड करें तो ये आ जाए। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं सोचना, इसमें से एक एक फैक्टर ले लो। एक फैक्टर क्या ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर दूसरा ले लिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें दो फैक्टर थे, एक फर्स्ट नंबर में ले लिया, एक सेकंड नंबर में। एक 4 है, 4 के भी फैक्टर कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 into 2, एक 2 इसमें ले लेते हैं और एक 2 इसमें ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं दोनों को ऐड करूं, लेकिन एडिशन के बाद आंसर कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। तो फर्स्ट नंबर भी नेगेटिव होगा और सेकंड नंबर भी नेगेटिव। अब आप देखिए, अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करके देखिए कि हमें -4a स्क्वायर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो एक बार फिर समझ लीजिए,
फैक्टर करना काफी सिंपल है क्योंकि इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई करने पे जो हो रहा है वो फैक्टर की ही फॉर्म में हो रहा है। इसमें टू फैक्टर्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं, तो एक फैक्टर तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड द सेकंड फैक्टर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक डिजिट 4 भी आनी चाहिए, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 जा 4, 2 into 2, तो एक 2 इस फैक्टर में इंक्लूड कर लेते हैं और एक 2 इसमें, 2 2 जा 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है नहीं आ रहा। अब हमें देखना था कि एडिशन पे -4a स्क्वायर आना चाहिए, तो आंसर नेगेटिव में होना चाहिए, इसलिए दोनों नंबर नेगेटिव लेंगे। अब हम दोनों नंबर को ऐड करके देखते हैं कि वास्तव में -4a स्क्वायर रियली में आ रहा है या नहीं आ रहा। करें -2a स्क्वायर -2b स्क्वायर -2a स्क्वायर -2 को -b स्क्वायर से किया प्लस 2b स्क्वायर, इससे ये कट माइनस का 4a स्क्वायर मींस अपने फैक्टर सही है। ओके, अब इनके साथ x और लगा देना। तो आइए दोबारा इधर, तो 4x स्क्वायर फर्स्ट फैक्टर क्या किया इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, माइनस फर्स्ट फैक्टर ये है, सेकंड फैक्टर ये। कहां से पता लगा है, जो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। 4 के भी 2 और 2 कर दो, एक 2 को इसके साथ एक 2 को इसके साथ, अपन को नेगेटिव चाहिए इसलिए दोनों फैक्टर माइनस के होंगे। माइनस का 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर प्लस इसके फैक्टर कर दिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कॉमन 2 and 4 में से 2, x and x स्क्वायर में से x, देन 2x माइनस ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, 2 and x मैंने कॉमन लिया, या 2x रिमेनिंग टर्म बची, या माइनस 2 and x कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, मुझे 2 उसमें नहीं है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ रहा है, कैसा, माइनस का। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो 2 and x, माइनस कॉमन लिया देन साइन चेंज, क्योंकि नेगेटिव कॉमन लिया जाए या नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया जाए तो आगे आने वाले सभी नंबर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दोनों में ब्रैकेट कॉमन, एंड द रिमेनिंग 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ फैक्टर इक्वल्स टू 0 व्हेन देन फर्स्ट फैक्टर 0, सेकंड फैक्टर 0 और बोथ फैक्टर्स 0। टू x इक्वल्स टू, ये पूरा ब्रैकेट नेगेटिव में ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ओके, देन x इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। ओके, सेकंड 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये पूरा फैक्टर ब्रैकेट नेगेटिव में ट्रांसपोज करेंगे, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। then x equals to a square minus b square upon 2। okay, clear, noted। 11th part of question number 2, ये लास्ट पार्ट है इसका। इसके बाद अपनी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगी और लास्ट क्लास सॉरी नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। abx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ac x माइनस bc इक्वल्स टू 0। ओके, देन मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के इक्वल आना चाहिए, मींस फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। ab को माइनस bc से करेंगे तो आना चाहिए माइनस ab स्क्वायर c, और सब्ट्रैक्ट करने पर b स्क्वायर माइनस ac। तो देखिए इसमें ऑलरेडी इसके फैक्टर कर रखे हैं, क्योंकि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। ऑलरेडी मिडिल टर्म्स 2 पार्ट में डिवाइड हो ही रही है, मतलब इसके ऑलरेडी फैक्टर बन रहे हैं। कैसे, x b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और x ac के साथ, तो ऑलरेडी ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो ही रहा है। तो ab x स्क्वायर b स्क्वायर x माइनस ac x। तो यहाँ आपको फैक्टर बनाने के लिए
ज्यादा कुछ नहीं सोचना, क्योंकि ऑलरेडी मिडिल टर्म टू टर्म से मिलके बनी है, तो ये ऑलरेडी दोनों फैक्टर हैं। एक फैक्टर हो गया b स्क्वायर x और सेकंड फैक्टर हो गया माइनस का ac x। ओके क्लियर। देन वी टेक द कॉमन b एंड x, सो ax प्लस b। ठीक है, इनमें से एक तो x और एक b कॉमन लिया, देन द रिमेनिंग वैल्यू ax प्लस b, वेयर माइनस c कॉमन। ओके, देन ax प्लस b, क्योंकि देखो आप ऐसे भी देख सकते हैं ax तो मुझे चाहिए, ax चाहिए तो जो भी ax के साथ दिख रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या दिख रहा है, ax के अलावा माइनस का c, देन वी टेक द कॉमन माइनस c एंड द रिमेनिंग फैक्टर इज सेम एज द ax प्लस b, देन ax प्लस b and bx minus c equals to 0. ax plus b equals to 0, ax equals to minus b, x equals to minus b upon a, and bx minus c equals to 0, bx equals to c, then x equals to c upon b. So our exercise 3.3 is completed, in which we use the method factorization method or splitting the middle term. Okay, and in the next class we will start the exercise 3.4. Okay.